Hello everyone, I welcome you all to my channel. So, I am Lakshmi Sau and I studying in class 9. Today I am going to teach you direct and indirect speech. And guys, one more thing I want to tell you that if you want all subject notes, then do hit the bell icon to subscribe my channel and share my channel to all your friends. And go to my playlist where you find all the subject notes in a proper way. And guys, I want to tell you that if you want to join with me on Telegram group, then please see the description of this video. And if you want to download the PDF of this particular lesson, then also see the description of this video. You will get the all link which you want. Okay. So firstly, if you want to change direct into indirect, and if you want to learn direct and indirect speech, active and passive voice, firstly you have to learn the rules of tenses, so you can solve this better and easily way. Okay, so if you want to watch the video of tenses, I have uploaded. You can see in my playlist. You get the link and you get the video. Okay, so let us see what is the differences between both of them. So before we start this chapter, I want to tell you that uh, direct and indirect speech is also known as, yeah. So direct and indirect speech is also known as narration. Let me write narration. Okay, this is very important. I think so. So direct and indirect speech is also known as narration. So let us see what is the differences between both of them. Yeah. So here is the example, so you can understand it better. So there are mainly two forms of speech. There are two forms of speech: direct form of speech and indirect form of speech. And direct form of speech is also known as reporting verb, and indirect form of speech is also known as reported speech. So direct form of speech, one example here is John said. Okay, John said to his brother, I am going to the market. जॉन अपने भाई से बोलता है, ठीक है। जॉन ने अपने भाई से कहा आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब देखते हैं इसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। सो जॉन टोल्ड हिज ब्रदर दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। मतलब जॉन बोलता है अपने भाई से कि मतलब कि वह, यानी कि जॉन है वो बाजार जा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो डेफिनेशन होता है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम लोग देखेंगे। कि मैं आप लोग बता देना चाहती हूँ कि डायरेक्ट जो फॉर्म ऑफ स्पीच होता है उसमें हम लोग सिंपली अपनी बातों को कहते हैं, डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है उसी बात को हम लोग घुमा फिरा के बोलते हैं, ठीक है। So let us see, when the actual form of words of the speaker are used, it is direct speech. तो जो actual form of words होते हैं स्पीकर का, जो मतलब जो बोलता है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा। As I told you that the simply sentences which we are daily use and जो हम लोग सिंपली यूज करते हैं, जो हम लोग खुद बोलते हैं उसी को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। बट व्हेन वन टेल्स अबाउट स्पीच ऑफ द स्पीकर, लेकिन कोई और उसी बात को घुमा फिरा के बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, सो लेट अस सी डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब वर्सेस रिपोर्टेड स्पीच, राइट। ओके, सो लेट अस सी, या सो क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके, लेट मी राइट दिस डायरेक्ट स्पीच, या so direct speech. Indirect speech, we reproduce the actual word of the speaker. The words of the speaker are put with inverted commas. तो क्या दिया, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वो एक्चुअल वर्ड्स होता है स्पीकर का, जो वो बोलता है किसी को अपनी बातों को बताना चाहता है वही होता है। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर पुट विथ इनवर्टेड कॉमास, ठीक है। तो जो मान लो जो स्पीकर है, ठीक है, जो स्पीकर है जो भी अपने बातों को बोलता है, जो बोल रहा है वो नहीं,
मतलब जो बोल रहा है, ठीक है, जो स्पीकर है वो बोल रहा है, उसको नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो करते हैं, लेकिन जो स्पीकर अपनी बातों को जो बोल रहा होता है, जितने भी वर्ड्स यूज करते हैं बताने के लिए, उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमास में उसको रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और सबसे इजीली हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट में है और कौन सा सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में है। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इसका पहचानने का एकदम सिंपली सा रूल है दैट in any sentences when you see the double inverted commas of the sentence, you will finally note that this is direct speech and this is easily okay. So यहाँ पे दिया हमारा ये जो I go to school है, ठीक है, I go to school, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में किया है, ही सैड, ठीक है, ही सैड, ये हमारा स्पीकर है। मैंने आप लोग को बताया था कि जो स्पीकर है उसको नहीं हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, लेकिन जो बातों को अपने बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या बताना चाहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ही सैड, उसने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखा है जो कि स्पीकर ने बोला है। अब हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या था, उसके बाद देखेंगे कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। ठीक है, नियरेस्ट फारदेस्ट भी देखेंगे, प्रोनाउन किस में चेंज होता है, बहुत कुछ इसमें चेंज होता है। ठीक है, सो लेट अस सी या ओके। सो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, in indirect speech we reproduce the actual words of the speaker, we report speech after making some changes। तो क्या दिया, वही सब कुछ होता है जो स्पीकर बोला रहता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मतलब उसमें टेंसेस बदल जाती हैं, उसमें प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं, यानी कि जो बातें स्पीकर बोला रहता है वो फिर से घुमा, मतलब उसको कोई और घुमा फिरा के बोलता है, अपनी बातों को ही फिर से घुमा फिरा के बोलता है। जैसे हमारा यहाँ पे दिया है कि डायरेक्ट स्पीच में हमारा क्या एग्जांपल था, लेट मी राइट, ही सैड या ही सैड डबल इन्वर्टेड कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई गो टू मार्केट, इजंट इट, आई गो टू मार्केट उसमें था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, सम चेंजेस, कुछ चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल और मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली चेंज हो गया है, क्या चेंज हुआ है कि उसमें था ही सैड आई गो टू मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ही सैड दैट। ठीक है, पहले सेंटेंस में उसने बोला था डायरेक्ट स्पीच में कि मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ या फिर मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट में जब उसको चेंज किया है तो क्या हो गया, ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल, यानी कि वह कह रहा है या फिर वह कहता है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो कोई तीसरा है, कोई थर्ड पर्सन है जो बोलता है कि जो स्पीकर है उसकी बातों को बोलता है कि वह ये काम कर रहा है और ये मतलब यहाँ पे जा रहा है। जैसे हमारा दिया था ही सैड आई गो टू स्कूल, एंड यहाँ पे जब हम लोगों ने उसको चेंज किया तो क्या हो गया है, ही सैड दैट ही वेंट टू स्कूल, मतलब वही काम हो रहा है, बस थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, उसको घुमा फिरा के बोलते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी एंड लर्न इंग्लिश इन फनी वे, आई थिंक सो, बिकॉज इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, आप लोगों में से जिसका भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। ओके, सो लेट अस सी या अब देखते हैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यूज करने चाहिए डायरेक्ट स्पीच में जब उसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। ठीक है, सो व्हेन यूजिंग डायरेक्ट स्पीच इन योर राइटिंग यू नीड टू यूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग को यूज करना चाहिए। फर्स्ट तो हमारा क्या है, द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी इंक्लोज्ड इन स्पीच मार्क्स। ओके, स्पीच मार्क्स। ठीक है, तो हम लोग को किस में मतलब कोई भी स्पीकर है जो वर्ड्स को बोलता है, यहाँ पे स्पीच मार्क्स का मतलब क्या है, इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ओके।
सो दिया है कि कोई भी एग्जैक्ट वर्ड हो जो स्पीकर बोलता है उसको हमेशा हम लोग को इन्वर्टेड कॉमास में ही रखना चाहिए, तभी हम लोग को पता चलेगा कि वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, फिर दिया है द फर्स्ट वर्ड ऑफ द स्पीच मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। और जो स्पीच बोल रहा है यानी कि मान लो यहाँ पे हमारा दिया था ही सैड, ठीक है, तो ही सैड के बाद मतलब कोई भी स्पीकर हो, ठीक है, कोई भी स्पीकर हो, जब हम लोग दूसरा उसका सेंटेंस लिखते हैं कि वो क्या बोल रहा है तो वो हमारा ये तो हमारा कैपिटल लेटर रहेगा ही। हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि पहला लेटर तो स्टार्ट होगा ही होगा कैपिटल लेटर से, लेकिन जब डबल इन्वर्टेड कॉमास हम लोग लगाते हैं तो जो उसका पहला वर्ड्स होता है, जो उसका पहला लेटर होता है वो भी हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिया, अभी मैं आप लोग को राइट करके दिखा रही हूँ, लेट मी चेंज द कलर, या सो एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रही हूँ कि या राम, ठीक है, राम सैड, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन, राम सैड आई, ठीक है, आई गो टू विलेज, आई गो टू विलेज, और हम लोग को डबल इन्वर्टेड कॉमास को बंद कर देना है। तो देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है कि हमेशा जो कैपिटल जो हमारा फर्स्ट लेटर होगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में जब हम लोग उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, अदरवाइज यू गेट रॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग को ये सब स्टेटमेंट आप लोग को याद रखने हैं और कौन कौन से अभी हम लोग देखेंगे। सो द वर्ड्स इन द स्पीच मार्क्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कॉमा। तो हमेशा जो स्पीकर रहता है तो स्पीकर के बाद हम लोग को कॉमा लगाना रहता है, और जो स्पीकर बोला रहता है उसको हम लोगों को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना रहता है, यानी कि उसको सेपरेटली हम लोग को लिखना रहता है, एक में मिक्स करके नहीं लिखना रहता, नहीं तो फिर भी आप लोग गलत कर सकते हो। ठीक है, सो यू मस्ट यूज अ न्यू लाइन व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगिंस टू स्पीक। तो कोई भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो स्पीकर होते हैं, दो अपनी बातों को बोलते हैं, यानी कि कहानी वगैरह में अगर आप लोग ले लो, पैराग्राफ में ले लो, ऐसे हम लोग को अभी आप लोग जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 9th में भी है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं जो कि आप लोग को चेंज करना है, मुझे भी चेंज करना है। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को पैराग्राफ्स मिलेंगे जिसमें 2-3 बहुत सारे स्पीकर्स दे रहेंगे, न्यू स्पीकर्स होंगे जो कि अपनी बातों को बताएंगे, बोलेंगे, तो उसको आप लोग को न्यू लाइन में लिखना है, ये नहीं कि एक ही लाइन में सारे लिख देने हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड दिस ऑल आर करेक्ट। ओके, सो लेट अस सी। अब देखते हैं ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, या सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को ये नहीं पता रहेगा तो आप लोग कभी चेंज कर ही नहीं सकते हो, ना ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को चेंज कर सकते हो और ना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या है। सिंपल प्रेजेंट को हम लोग किस में चेंज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, ये थोड़ा उल्टा लिखा है, आप लोग ये भी बोल सकते हो प्रेजेंट सिंपल इज चेंज इनटू पास्ट सिंपल। मैं आप लोग को बता रही हूँ सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, ही सेड आई वांट टू कैच अ फिल्म। ठीक है, आई वांट टू कैच अ फिल्म, और जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किए तो क्या हो गया, ही सेड दैट he wanted to watch a film। और one more thing is that you have to remember कि हमेशा अगर आप लोग मतलब मैंने आप लोगों को तो बता दिया कि डायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा आप लोग जान जाओगे कि वो डायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, लेकिन मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानोगे। ओके, कैसे आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच को पहचानोगे, तो जहाँ पे भी आपका सेंटेंस में डैट दिया हो, ठीक है, डैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डैट जहाँ पे भी दिया हो तो आप लोग जान जाना कि वो सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है। ओके, तो ये सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है और सिंपल पास्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग टेंस का वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूलेज बताए हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक वो फॉर्मूला नहीं बताने जा रही हूँ, बस आप लोग को एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो लेट अस सी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट,
एंड सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिंपल पास्ट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो होता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो सिंपल पास्ट को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अलेक्स सैड आई फिनिश्ड माई होमवर्क एंड अलेक्स सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है। अब हमारा दिया है कि जो हमारा विल होता है ये हमारा फ्यूचर्स में आ गए हैं, तो फ्यूचर हमारे चेंज नहीं होते हैं, वो ऐसे ही होते। बस हमारा जो विल है ना, विल, कोई भी सेंटेंस अगर विल में दिया हो उसमें तो हम लोग उसको वुड में कर देते हैं, और शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और क्या है हमारा मस्ट को हैड टू में, और हैव टू को हैड टू में, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। ये सारे रूल्स आप लोग अगर याद रख लोगे तो बहुत ही इजी से आप लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। ओके, सो लेट अस मूव। या अब देखते हैं कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग को अगर सेंटेंसेस नहीं पता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहले आप लोग सेंटेंसेस और फ्रेजेस का वीडियो देख लो, मैंने अपलोड कर चुका है। तो फर्स्टली यू हैव टू सी द वीडियो ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस सो यू कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बेटर। ओके, सो लेट मी टेल यू, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वी नो दैट। फर्स्ट वन इज हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट या फिर उसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं, वो किसके लिए होता है, टू आस्क क्वेश्चंस। और जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो सेंटेंस है समथिंग विच आर से और स्टेट समथिंग। तो जो सिंपल होते हैं, असर्टिव सेंटेंस हमारा एकदम सिंपल सा होता है, और इंट्रोगेटिव क्या होता है, टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव तो बहुत ही ईजी है, इसके लास्ट में हम लोग जब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और स्टेटमेंट में क्या होगा, बस फुल स्टॉप। इंपरेटिव में क्या होता है, विच एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेस्ट। तो हमारा इंपरेटिव में क्या क्या आते हैं, जिसमें ऑर्डर कोई दे रहा हो, कोई कमांड कर रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, एडवाइस दे रहा हो या फिर सजेस्ट कर रहा हो, तो वो हमारे इंपरेटिव में होते हैं। और हमारा जो है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी में क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी का हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी मार्क्स क्या है हमारा, ये है, ठीक है। इससे हम लोग जान जाएंगे कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लामेटरी में है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, ठीक है। विच एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस सच एज सॉरो, जॉय, सरप्राइज, वंडर, कंटेम्प्ट एंड एक्सेट्रा। तो एक्सक्लामेटरी में ये सब सेंटेंस जाता है, जहाँ पे भी आप लोग को जॉय, सरप्राइज, वंडर, कंटेम्प्ट ये सब दिखे तो आप लोग जान जाना कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है ये हमारा डायरेक्ट। और उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ओके, सो वन मोर थिंग जो आप लोग को याद रखना है वो क्या है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट, रिपोर्टिंग वर्ब मैं आप लोग को बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। ओके, लेट मी राइट द वन मोर एग्जाम्पल। या सो रिपोर्टिंग वर्ब, फॉर एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं सोहन सेज, सेज, ये आप लोग याद रखना, सोहन सेज, यानी कि सेज जो हमारा ये है प्रेजेंट में। तो सोहन सेज आई एम होगा, आई एम ईटिंग द फूड, ठीक है। सोहन सेज आई एम ईटिंग द फूड, क्या दिया है हमारा, आई एम ईटिंग द फूड। तो ये सोहन सेज, यानी कि जो हमारा सेज है, ये हमारा सेज है वो किस में है हमारा, वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट में है, तो जहाँ कहीं भी, या आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो है ये कॉमा के पहले जो वर्ड्स होता है, यानी कि जो स्पीकर होता है वो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, और जो डबल इनवर्टेड कॉमाज में होते हैं वो हमारे रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट को भी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इनडायरेक्ट को भी रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारा ये सेंटेंस ऐसे दिया रहेगा कि मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है 2 भागों में डिवाइड होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में। तो जो स्पीकर होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो भी कुछ उसने कहा होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यहाँ पे सोहन सेज यानी कि प्रेजेंट में है,
तो आप लोग को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है अगर वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, दोनों में हो, तो दोनों में से किसी कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इजंट चेंज्ड एट ऑल। ठीक है, तो चेंज नहीं होता है। वी विल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में दिया रहता है तो हम लोग जो उसका रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो स्पीकर बोला रहता है, उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें का जो टेंस होता है वो कुछ भी चेंज नहीं होता है। बस हम लोग को सिंपली क्या करना होता है कि प्रोनाउन चेंज करना होता है। और अभी मैं आप लोग को बताऊँगी प्रोनाउन कैसे किस में चेंज होता है। और प्रोनाउन चेंज करके और फिर बस डैट लगाना रहता है और कुछ नहीं चेंज होता है। बस टेंस हमारा चेंज होता ही नहीं है इसमें। जहाँ कहीं भी आप लोग को प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको दिखे, यानी कि सेज दिखे या फिर विल से दिखे, तो आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करना है। ओके, अभी मैं आप लोग को बताऊँगी। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही सेज जॉन पेंट्स अ पिक्चर। इनडायरेक्ट में इसको कैसे चेंज किए, ही सेज दैट जॉन पेंट्स अ पिक्चर। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि कुछ भी इसमें चेंज नहीं हुआ है। यू कैन सी ही सेज दैट, बस हम लोग को यहाँ पे डैट लगा दिए हैं। और जॉन पेंट्स अ पिक्चर, तो ही हमारा थर्ड पर्सन है। अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन क्या पर्सन होता है। सन फॉर्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से याद करना होगा। तो बस हम लोग को ही, यानी कि पता चल गया ये हमारा जॉन है, तो जॉन के लिए हम लोग जॉन लगा दिए हैं। और अगर कोई लड़की हो, मतलब कोई लड़की हो, तो उसके लिए हम लोग हर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का है ही, तो हम लोग यहाँ पे जॉन पेंट्स अ पिक्चर। फिर ही सेज जॉन पेंटेड अ पिक्चर, ही सेज दैट जॉन पेंटेड अ पिक्चर। सिर्फ हम लोगों को डैट लगाना और सब बाकी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्यूचर का क्या दिया है। ही विल से जॉन्स लाइक दिस पिक्चर, ही विल से डैट जॉन लाइक्स दैट पिक्चर। तो बस आप लोग को दिस को डैट में चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, यानी कि नियरेस्ट फारदेस्ट को चेंज करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है और डैट लगाना है। लेकिन टेंस हमारा कभी नहीं चेंज होता है अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में दिया रहे तब, सब सेंटेंस के साथ नहीं। ओके, सो वन मोर थिंग पॉइंट इज दैट if the reported speech expresses some universal truth or habitual fact, then the tense of the verb in the reported speech is not changed into the corresponding past tense exactly as is। तो क्या दिया है कि कभी भी जब आप लोग देखोगे यूनिवर्सल जो ट्रूथ होता है या फिर हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, तो उसमें जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है वो चेंज नहीं होता। उसमें भी बस हम लोग डैट लगा देते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। अभी हम लोग उसको एग्जाम्पल से देखेंगे। ओके, सो हियर इज एग्जाम्पल। ही सैड मैन इज मॉर्टल। तो जो आदमी होता है वो मॉर्टल होता है। ठीक है, तो ही सैड डैट मैन इज मॉर्टल। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बस डैट हम लोग पुट किए हैं और सब हमारा सेम है। ही लेट मी सॉरी या तो उप्स क्या दिया है, ही सेज ही सैड 2 and 2 make 4। तो क्या दिया, ही सैड दैट 2 and 2 make 4। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस हमारा डैट लग गया। तो कभी भी आप लोग देख लो कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, या फिर कोई हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में क्या करते हैं, नहीं चेंज करते। इनडायरेक्ट में हम लोग उसको चेंज नहीं करते हैं, बस डैट का यूज कर देते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। And guys, if you like my videos, then don't forget to hit the like button to subscribe my channel. Okay, so अब देखते हैं हम assertive sentence। ये तो हमारे कुछ facts थे जो हम लोग को याद रखने थे, जो important थे। अब देखते हैं हम लोग sentences पे आते हैं। assertive sentence, सबसे पहले उसके exercise देखेंगे, कुछ examples हैं कि कैसे उसको change करते हैं, देखते हैं। so यहाँ पे example है हमारा, ये सबसे easy होता है। ठीक है, they said we have done our duty। they said that they had done their duty। तो क्या होता है, they said that they had done their duty, यानी कि they said मतलब वे लोग, यानी कि उन लोगों ने कहा। ठीक है, उन लोगों ने कहा we have done our duty, हम लोगों ने अपना काम
लिया है, हम लोगों ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। अब उसी को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे कि जो स्पीकर है मतलब कोई और तीसरा पर्सन उसको घुमा फिरा के बोलेगा दैट दे सैड, यानी कि उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, दैट कि दे हैड डन देयर ड्यूटी, यानी कि वे लोगों ने, उन लोगों ने अपना ड्यूटी कर लिया। यहाँ पे दिया है कि दे सैड मतलब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपना ड्यूटी कर लिया। अब कोई तीसरा बताना चाहता है उस बात को कि उन लोगों ने अपना ड्यूटी कर लिया। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कौन सा पर्सन किसके साथ चेंज होता है। सो जस्ट कीप पेशेंस। द टीचर सैड टू अस, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर ड्राइंग। द टीचर टोल्ड अस। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ, ये हमारा सब्जेक्ट है दे, और सब्जेक्ट के साथ फिर सैड से ऐसे लगा रहेगा। उसके बाद अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर हम लोग हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी हम लोग उसको क्या करेंगे, सैड को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और तब हमारा टू हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कभी भी अगर सब्जेक्ट के बाद सैड दिया है, ठीक है, सैड दिया है, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको चेंज करेंगे टोल्ड में। और अगर कभी भी अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिंपली दिया है, मतलब दे सैड, ही सैड, यू सैड, ऐसे दिया है, तो उसको हम लोग टोल्ड में चेंज नहीं करते हैं, बस सैड ही रहने देते हैं और डैट लगा देते हैं और टेंस हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे दिया द टीचर सैड टू अस, द टीचर सैड टू अस, यानी कि अस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर ड्राइंग, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपना ड्राइंग कंप्लीट नहीं किया। द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट कम्प्लीटेड आवर ड्राइंग, तो जो टीचर टोल्ड अस मतलब टीचर ने हम लोगों से कहा कि हम लोगों ने, ठीक है, अब पहले सेंटेंस में तो टीचर ने बोला कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन अब बच्चे बोल रहे हैं, कोई तीसरा है जो बोल रहा है कि टीचर ने कहा कि हम लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे और एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हो। ओके, अब देखते हैं, ये हमारा इम्पोर्टेंट ही है, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, सेज टू को हम लोग किस में चेंज करते हैं, से टू या फिर टेल में कर देते हैं, ठीक है, टेल में कर देते हैं। सेज टू को हम लोग क्या करते हैं, सेज टू टेल्स में कर देते हैं। विल से टू को क्या करते हैं, विल से टू या फिर विल ऑर्डर, विल रिक्वेस्ट, विल आस्क, जैसे हमारा सेंटेंस होगा जिसके अकॉर्डिंग होगा, चाहे वो इम्परेटिव में हो, असर्टिव में हो, इंट्रोगेटिव में या फिर एक्सक्लेमेटरी में हो, उसके अनुसार हम लोग चेंज करेंगे। सैड टू को हम लोग बोले हैं टोल्ड में चेंज करने के लिए, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वहाँ पे बस टोल्ड में चेंज करेंगे, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा वहाँ पे सैड ही सिंपली ऐड कर देंगे, रखेंगे। ठीक है, सैड टू को रिक्वेस्टेड जब वो हमारा इम्परेटिव होगा तो, सैड टू को आस्क में जब हमारा क्वेश्चन मार्क वाला आएगा तो, सैड टू को एडवाइस में फिर से इम्परेटिव, सैड टू को ऑर्डर में फिर से इम्परेटिव, सैड टू को फॉरबिड में फिर से हमारा इम्परेटिव आ गया, फिर अर्ज्ड, रिमार्क्ड, कमांडेड, रिक्वायर्ड, सजेस्टेड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय हमारा एक्सक्लेमेशन में आ गया, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हमारा भी एक्सक्लेमेशन में आ गया। तो हर जगह सैड टू दिया रहेगा, ठीक है, हर जगह सैड टू दिया रहेगा, लेकिन आप लोग को टेंस देखना है या फिर आप लोग को जो स्पीकर जो बोला है उस सेंटेंस को देखना है, यानी कि आप लोग को रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि जो सेंटेंस वो बोला है वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर इम्परेटिव है, उसके अनुसार आप लोग को सैड टू को चेंज करना है। आस्क्ड में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, फिर टोल्ड में, ऐसे आप लोग को देखकर आप लोग को बहुत अच्छे से इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब देखते हैं प्रोनाउन किसमें क्या चेंज होता है। ओके, सो आई का प्रोनाउन क्या होता है, आई का हमारा ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का होता है हर, आई का मी, फिर सी का हर, वी, ही, वी, दे ऐसे होता है हमारा। ठीक है, दे का देम हो जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव में कैसे होता है, आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है और वी का आवर हो जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई का माइन, यू का योर्स और वी का आर्स। और डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होगा, दिस का हमारा हो जाएगा डैट और दीज का हो जाएगा हमारा दोष। तो आप लोग को ये सब अच्छे से याद रखना है, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप लोग को याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोनाउंस हैं
जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उसको आप लोग को याद रखना है कि आई को हम लोग मी में चेंज करते हैं, यू को यू में, सी का हर में, ही का हिज में, दे का देम में, वी का अस में, ठीक है, और इट का तो इट्स में रहेगा, ठीक है। तो यही सब बस आप लोग को याद रखना है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्या कि हम लोग कैसे फारदेस्ट और नियरेस्ट में चेंज करते हैं। तो नाउ डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका कोई सेंटेंस उसमें नाउ दिया और लास्ट में, तो आप लोग उसको चेंज कर देना टोटली। लास्ट में आप लोग टेंस के अनुसार आप लोग लगा देना देन। टुडे का दैट डे, हियर देयर, टुमारो का होता है द डे आफ्टर, ठीक है, द डे आफ्टर यानी कि आज के बाद, जो आज के बाद वाला कल सुबह होगा उसको बोल रहे हैं टुमारो। नेक्स्ट वीक, द वीक आफ्टर, यस्टरडे द डे बिफोर यानी कि जो आज का दिन यानी कि टुडे के पहले वाला जो दिन था वो। लास्ट वीक द वीक बिफोर, एगो का प्रीवियसली, टू नाइट का दैट नाइट, नेक्स्ट सैटरडे का दैट सैटरडे, एंड लास्ट संडे का द संडे बिफोर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो यही आप लोग को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये सब चेंजेस उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लगते हैं जब आप लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो। सो प्रोनाउन आप लोग को सबसे ज़्यादा याद रखना है। फर्स्ट वन इस प्रोनाउन का आप लोग को याद रखना है कैसे चेंज करेंगे। फिर हमारा ये जो टाइम और प्लेस है इसको हम लोग को याद रखना है। फिर टेंस है उसको कैसे चेंज करेंगे, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। फिर सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर एडवाइस में, ऐसे ये सब आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, तभी आप लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं सन का फॉर्मूला क्या होता है। सो इट इज़ वेरी इजी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। सो लेट मी राइट SON। सो सिंपली SON मतलब S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट and N means no change। ओके, नो चेंज। तो सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट मीन्स सेकेंड पर्सन एंड नो चेंज मीन्स थर्ड पर्सन। तो मैं आप लोग बता दूं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं हमारे, आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में हमारा आता है यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे। ये सब हमारे क्या है, प्रोनाउंस है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन है वो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आई वी दिया रहेगा तो उसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे कि वो पर्सन लड़का है, लड़की है, कौन, क्या है। तो जहाँ कहीं भी हमारा आई वी दिया रहेगा उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू चेंज आई वी, that is first person। and whenever you see the sentence you have to change the you with according to object, that is second person। and third person हमारा no change होता है। तो इसमें हमारा एकदम सिंपली सा है, कुछ चेंज नहीं होता है। ही लिखा रहेगा तो ही रहने देंगे, सी लिखा रहेगा तो सी रहने देंगे, इट का इट में, दे का दे में, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड they। first person change according to subject, second person change according to object, and third person change according to doesn't change। Okay, so let us see the example for this। if subject of the quoted words is in first person then it will be changed according to the subject which I have already told you ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिया, देखिए आप लोग को एग्जाम्पल में बता देती हूँ। ही सैड टू मी आई लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर जो हमारा आई है ये क्या है, हमारा आई जो हमारा है वो है फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ही टोल्ड क्यों यहाँ पे टोल्ड रहेगा, क्योंकि हमारा सैड टू मी यानी कि ऑब्जेक्ट में, तो ही टोल्ड डैट लगा देंगे और फिर ही, ठीक है। तो ही सैड टू मी आई लाइक कॉफ़ी यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं, मतलब जो ही है वो बोल रहा है कि मुझे कॉफ़ी पीना, मतलब कॉफ़ी अच्छा लगता है, आई लाइक कॉफ़ी। तो ही टोल्ड डैट ही लाइक्ड कॉफ़ी। तो आई किसके लिए यूज किया गया है, आई हमारा क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। तो ही को हम लोग क्या लिख देंगे, ही।
ही और लाइक्ड कॉफ़ी, यानी कि हमारा किस में है, ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट में। ये हमारा जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम लोग इसको चेंज कर दिए हैं सिंपल पास्ट में, दैट इज ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी। सो दैट्स वाई आई यूज हियर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है कि कौन सा पर्सन, कौन सा ये जो हमारा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया है कि ही सेड टू मी आई लाइक कॉफ़ी, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी, यानी कि उसने कहा कि वो कॉफ़ी को लाइक करता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दी हूँ कि आई जो हमारा है, आई हमारा किसके फर्स्ट पर्सन तो चेंज करेंगे उसको हम लोग सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म में होगा यू, तो उसको चेंज करेंगे हम लोग। कहीं भी अगर यू आ गया तो आप लोग सीधे जाना ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आप लोग को ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज करना होगा। और थर्ड पर्सन में तो हमारा कुछ चेंज नहीं होता, सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रही हूँ कि if subject of the quoted words is in second person then it will change according to the object of reporting verb। कैसे चेंज होगा, he said to me you look happy, तो you हमारा क्या है, you हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी you हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, यू हमारा सेकेंड पर्सन, एक यही है जो कि सेकेंड पर्सन में होता है, तो ये तो और इजी है। तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है एंड वी नो डैट यू, यानी कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो हमारा इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मी है। ठीक है, तो मी का क्या होता है, मी का सब्जेक्ट हमारा होगा आई का ऑब्जेक्ट तो मी होता है ना। तो यहाँ पे मी दिया तो उसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, दैट इज ही टोल्ड दैट आई लुक्ड हैप्पी। यहाँ पे दिया कि ही सेड टू मी, मतलब उसने मुझसे कहा यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो। ही, तो फिर मैंने क्या, मतलब किसी और ने क्या बताया, फिर मैंने कैसे कहा कि ही टोल्ड दैट, मतलब उसने मुझसे कहा ही टोल्ड दैट आई लुक्ड हैप्पी, यानी कि मैं खुश दिखता था। ठीक है, ओके, तो आप लोगों को बस यही याद रखना है कि कौन सा पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आप लोग चेंज कर लोगे। अब थर्ड हमारा क्या दिया है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द क्यूटेड वर्ड्स इन द थर्ड पर्सन देन इट विल बी नो चेंज। तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। जैसे हमारा आप लोग देख सकते हो, ही सैड टू मी, सी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, ही टोल्ड दैट। ठीक है, ही टोल्ड दैट, बस यहाँ पे सैड टू की जगह पे टोल्ड लग गया है। सी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि सी का सी ही रहा, ही का ही रहेगा, कोई नाम दिया तो वो भी नाम ही रहेगा। और क्या हो गया, बस ये हमारा टेंस चेंज हो गया, यानी कि ये हमारा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट में और हमको बस इसमें चेंज कर दिए हैं पास्ट परफेक्ट में, और सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है, सो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस। ये तो हमारा बहुत ईजी है। अनु सेड टू मी विच मैगजीन डू यू रीड रेगुलरली, तो इसका क्या होगा, अनु आस्क्ड। बस आप लोग को याद रखना है, मैंने आप लोग को बता दिया पहले से ही कि इंट्रोगेटिव में जब जहाँ कहीं भी सैड टू आता है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, नहीं तो आप लोग गलत कर सकते हो। ठीक है, आप लोग का पूरा जो आंसर होगा गलत हो जाएगा अगर आप लोग क्वेश्चन वर्ड को आस्क्ड में चेंज नहीं किए तो। सो अनु आस्क्ड मी विच मैगजीन आई रीड रेगुलरली। क्या दिया है कि हमारा ये जो सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में दिया है, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए हम सिंपल पास्ट में। तो अब दिया येस और नो क्वेश्चन, आई सेड टू हिम कैन आई हेल्प यू एनीवे, तो इसको हम लोग कैसे चेंज किए हैं, आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड हेल्प हिम एनीवे। अब हम लोग देखेंगे कि, और अब मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जब चेंज करते हैं तो इफ़ और वेदर का यूज करते हैं। और ये भी बता देना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि इज, एम आर, वाज, वर, हैड, हैज़, हैड, फिर कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आते हैं, तो वहाँ पे ही हम लोग बस इफ़ और वेदर का यूज करते हैं। लेकिन जब कहीं भी आप लोग WH वर्ड देखो, यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब जब आते हैं तो उसको हम लोग इफ़ या वेदर में किसी में भी चेंज नहीं करते हैं, बस सिंपली वही लिख देते हैं, लेकिन इसमें डैट नहीं लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों में मतलब आप लोग को जब WH वर्ड मिले या फिर हेल्पिंग वर्ड मिले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम लोग डैट नहीं लगाते हैं, बस हमारा आस्क्ड में चेंज हो जाता है। सैड टू आस्क्ड में चेंज होगा, लेकिन बस जब हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा वही इफ़ या वेदर में चेंज होगा।
लेकिन जो हमारा WH वर्ड होता है वो कभी हम लोग उसको इफ़ या वेदर में चेंज नहीं करते हैं, वैसे ही कहा वैसा ही लिख देते हैं, बस उसमें टेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। ओके, सो लेट अस सी या अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आप लोगों को कुछ देख सकते हो कि मैं जो मैंने आप लोगों को बताया था येस और नो क्वेश्चन, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें इफ़ या वेदर का यूज करते हैं, जो WH वर्ड होते हैं उसमें हम लोग वेदर का या फिर इफ़ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या क्या इफ़ और वेदर का यूज कहाँ करते हैं। सो यूज इफ़ इन कंडीशनल सेंटेंसेस एंड वेदर व्हेन राइटिंग अबाउट टू अल्टरनेटिव्स। तो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं इफ़ का, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आते हैं, जब वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं यानी कि यस और नो क्वेश्चन में होते हैं, तब वहाँ पे हम लोग इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ज़्यादातर इफ़ का यूज करते हैं, क्योंकि इफ़ हमारा जो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा वेदर होता है जहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स होंगे, राइट किए होंगे, दो सेंटेंसेस होंगे, उसमें हम लोग वेदर का यूज करते हैं, मतलब बहुत ही कम यूज होता है हमारा वेदर का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स मूव ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में क्या होता है, ही सेड टू हिम डोंट मेक नॉइज, ही ऑर्डर्ड हिम नॉट टू मेक नॉइज। अब देखते हैं कि इसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। या सो हियर इम्परेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, क्या क्या आप एक्सप्रेस करते हैं, कमांड और ऑर्डर, फॉरबिडिंग, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इतने प्रकार के हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जिस भी सेंटेंस में तुमको अगर आप लोगों को अगर रिक्वेस्ट मिला, एडवाइस मिला, सजेशन मिला, फॉरबिडिंग या फिर कमांड या फिर ऑर्डर सेंटेंस दिखे, तो आप लोग को वहाँ पे जान जाना कि हमारा सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। सो फर्स्ट क्या दिया, कमांड और ऑर्डर। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम कमांड और ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू हिम ओपन द डोर। तो बस आप लोग को ये याद रखना है कि मैंने तो आप लोग को पहले से चार्ट दिखा दिया था कि सेड टू या फिर सेड टू को किस में चेंज करते हैं, लेकिन फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ही सेड टू मी ओपन द डोर, यानी कि जो इम्परेटिव होते हैं ना उसमें हम लोग सेड टू को आस्क्ड में या फिर टोल्ड में इन सब में चेंज नहीं करते हैं। जो कुछ भी वो कर रहा होता है, यानी कि जब वो कमांड देता रहेगा तो क्या करेंगे, कमांडेड कर देंगे, मतलब ही कमांडेड या फिर ही फॉरबिड। और अगर ऑर्डर दे रहा होगा तो उसको ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्ट करना हो तो प्लीज़ में चेंज कर देंगे या फिर रिक्वेस्टेड कर देंगे, ठीक है। और अगर सजेशन मांग रहा हो तो सजेस्टेड कर देंगे। उसको हम लोग कभी भी सेड टू को ऐसे ही चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड। तो हम लोग जिस प्रकार का वो टेंस होता है, जिस प्रकार से का सेंटेंस होता है हमारा इम्परेटिव में, उसी के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। टोल्ड में या फिर आस्क में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर, दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, फॉरबिड मीन्स क्या होता है, मना करना, ठीक है। दे फॉरबिड हिम टू टेल अ लाई। तो दोनों का मतलब यही हुआ कि उसने हमें मना किया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और यहाँ पे भी दिया दे फॉरबिड हिम टू टेल अ लाई, यानी कि उसने हम लोग को मना किया कि हम लोग को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस का मतलब हमारा एक ही है। ओके, सो लेट अस सी। अब रिक्वेस्ट का हम लोग देखते हैं। सो सॉरी गाइस, the sentences which expresses some request, ठीक है, the sentences which expresses some request. For example, he said to me please help me, he requested me to help him. That old woman said to the boy please leave me alone, the old woman requested the boy to leave her alone. तो ये हमारा रिक्वेस्ट में आप लोगों को बताया था, अगर रिक्वेस्ट में सेंटेंस आएगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, कमांड में आएगा तो कमांडेड में, फॉरबिड में आएगा तो फॉरबिड में उसको चेंज कर देंगे, और ऑर्डर में आएगा तो हमारा ऑर्डर्ड में हो जाएगा, एडवाइस में आएगा तो एडवाइस में, और सजेस्ट में कहा गया तो सजेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, आई एडवाइज्ड हिम, मतलब मैंने उसको सलाह दिया, उनको सलाह दिया कि आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड। और आप लोग को मैं बता दूँ कि मतलब हम लोग उसमें टोल्ड लगाते थे, ठीक है, या फिर सेड टू लगाते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस्ड के बाद हम लोग हमेशा एडवाइस्ड या फिर रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, इन सब के बाद हम लोग टू के बाद ही जो सेंटेंस हमारा दिया रहता है डबल इनवर्टेड कॉमास में उसको लिखते हैं। तो टू हमारा जरूरी है लगाना, ठीक है।
ओके अब देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स, आप लोग देख लेना। जिम सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन। जिम रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम एनी या फिर माई पेन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट क्वाइट स्मोकिंग। द डॉक्टर एडवाइज्ड टू नहीं लगा यहाँ पे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू क्वाइट स्मोकिंग, मतलब क्या करना नहीं चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा क्या है, लास्ट वर्ड है, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट टाइप भी है। द गर्ल सैड हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो इज। तो इसमें हम लोग कैसे चेंज करेंगे, द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट द रेनबो वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है, he said how tall the building is. He exclaimed that the building was very tall. You can see here the indirect speech exclamatory sentence वो हमारा किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, और मैंने आप लोग को बता दिया है कि सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि द गर्ल सैड हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। तो हमारा इज जो है, लेट मी शो यू, जो हमारा इज है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन जब हम लोगों ने उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या हो गया है, वॉज, यानी कि सिंपल पास्ट में हो गया। वैसे हमारा सब एग्जांपल से हम लोग देखेंगे अभी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, सॉरो, ओके क्या है, जॉय, सॉरो, कॉन्टेम्प्ट, रिग्रेट, सरप्राइज, ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग्स को, सडन जो हमारे इमोशंस होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब बस फील कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और हमेशा आप लोग देख लेना कि अगर पहचानना चाहते हो तो आपका हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा, जिससे आप लोग को पहचान सकते हो अच्छे से। ठीक है, सो जहाँ कहीं भी हुर्रा या फिर हा दिया होगा तो उसको हम लोग चेंज करेंगे एक्सप्रेस, यानी कि ही एक्सप्रेस्ड विथ जॉय। अल्लास मतलब सॉरो, उसको दुख हुआ है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। फिर ब्रेवो एक्सक्लेम्ड विथ एक्सप्रेस या फिर अपॉल्ज। एंड व्हाट हाउ एक्सप्रेस विथ, यानी कि एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उफ शाह मतलब एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। ठीक है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें देखनी है कि जहाँ पे हुर्रा दिया होगा यानी कि खुश होके, वो उसमें हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड या फिर एक्सप्रेस्ड विथ जॉय। ठीक है, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू नो दैट, विच चेंज अ फुल स्टॉप इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो उसका कैसे क्या कहते हैं, उसको कैसे साइन होता है, उसका कैसे साइन होता है मैं आप लोग को कई बार बता चुकी हूँ। आप लोग का ऐसे साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दिया है और उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, सो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स उसके। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, द बॉय सैड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मैंने आप लोग बताया था ना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जहाँ कहीं भी खुशी दिखेगी तो आप लोग बोल देना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय that they had won the match. The old man said, alas, I have lost my purse. The old man exclaimed with sorrow, यानी कि उसको दुख हुआ है, that he had lost his purse. The child said, what a beautiful sight. The child exclaimed with delight that it was a very beautiful sight. तो अब सब कुछ उसमें चेंज होगा, यानी कि प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, जितने कुछ चेंज होते हैं, फार, नियरेस्टनेस, सब कुछ चेंज होगा। बस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड लग जाएगा सैड टू के जगह पे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि उसको दुख हुआ है या फिर खुश है, उसके अनुसार हम लोग लगाएंगे विथ जॉय या फिर विथ सॉरो, विथ डिलाइट, विथ सरप्राइज, ये सब ऐसे हम लोग राइट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये थोड़ा हम लोग को मैंने आप लोग बताया था कि 9th 10th में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको मिलेंगे बनाने के लिए, जिसमें एक स्पीकर हो या फिर बहुत सारे चीज़ें बोलता हो, करता हो, या फिर कई स्पीकर्स हों जिनको हम लोग एक ही बार चेंज करना रहता है। यहाँ पे दिया है, अ क्रेन सैड टू अ फॉक्स, आई एम होस्टिंग अ डिनर टू नाइट फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वॉन्ट दैट यू टू शुड ज्वाइन अस एट डिनर। द फॉक्स सैड टू द क्रेन, इसको आप लोगों को चेंज करना है, यहाँ पर नीचे चेंज हुआ भी मैं आप लोग बताती हूँ। फिर से जो फॉक्स होता है वो बोलता है, द फॉक्स सैड टू द क्रेन, आई शैल नॉट बी कमिंग, लास्ट टाइम व्हेन आई अटेंडेड डिनर एट योर्स यू सर्व्ड मी विथ डिनर इन अ फ्लास्क, आई कुड नॉट ईट द डिनर एंड आई रिटर्न्ड होम एम्प्टी स्टमक। यह आप लोग मुझे लग रहा है कहानी सुने होंगे,
ठीक है, मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे चेंज किए हैं, अ क्रेन टोल्ड अ फॉक्स, ठीक है। सैड टू को हम लोग इसमें चेंज किए हैं टोल्ड को, यानी कि हमारा सिंपली यानी कि असर्टिव सेंटेंस में। अ क्रेन टोल्ड अ फॉक्स दैट ही वाज होस्टिंग अ डिनर दैट नाइट फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स एंड ही वांटेड दैट सी, यानी कि फॉक्स के लिए बोल रहा है, two should join them at dinner. The fox told the crane that she would not be coming. She further told him that last time when she had attended dinner at theirs, he had served her with dinner in a flask and he could not eat the dinner and she had returned home empty stomach. तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ दिस वीडियो विल help you, then please do hit the like button. Okay, so thanks for watching and please guys do hit the bell icon to subscribe my channel and share this video. Okay, share this video to all your friends. I hope this video will help you a lot. So take care till there, bye bye, see you in our second video.